Hello everyone. We will continue with the unit 1. In the previous lecture, we have studied about the multidisciplinary nature of environmental studies. So now we will study about the scope and importance of environmental studies. Here it is. The multidisciplinary approach to the subject can be implemented in a wide range of applications and fields related to environmental awareness, education, and conservation. So the approach we just studied, that various spheres of education or is like involved in this subject in studying environmental studies or its application. So here we will study about its application part. We have studied about कि उसका नेचर कैसा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है. तो subject can be implemented in a wide range of applications and fields related to environmental awareness, education and conservation. Environmental awareness create करने के लिए, environmental education देने के लिए and environment को conserve करने के लिए. Hence, the subject has a vast scope and experts on the subject can serve in numerous ways in different spheres of society. तो इस subject का बहुत ज़्यादा scope, vast scope है, and the experts from the different subjects can serve in different spheres of society. The experts and professionals of the subject are required and recruited in various sectors like. So now we will study about the various sectors जिसमें हम इन professionals को जहाँ जहाँ ये professionals required होते हैं. So firstly, the academics. The subject has been introduced in numerous school, colleges and universities in India and abroad. So India or abroad, as we all know, हर जगह this subject has been introduced as since the school. Elementary learning से ही ये subject introduce करा गया at school, undergraduation and post graduation level. So during all these three levels, we are made to learn environmental studies, or we study environmental studies as a subject. The student may pursue the subject worldwide. A large number of dedicated departments. Wait a second. A large number of dedicated departments, centers, universities, and institutions have been established for the subject. तो हम सबको पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेंटर्स खुल चुके हैं अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, जहाँ पर various departments are dedicated to environmental studies for the conservation or in the research sector. तो कौन से departments हैं? Some of the examples are here. Many dedicated institutes like WII Dehradun, that is Wildlife Institute of India, Dehradun में. And the next is FRI Dehradun, that is Forest Research Institute Dehradun. IIFM Bhopal, that is Indian Institute of Forest Management, Bhopal, etc. There are many more. So all these have been established to propagate education in specialized field of environment. So environment की field में they provide education, they also pursue research in this field. So academics is a sector जहाँ पे हम लोग इस सब्जेक्ट का स्कोप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की. नेक्स्ट एरिया जहाँ पर इसका बहुत स्कोप है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Research and postdoctoral works have been going on worldwide to understand the ecological mechanisms and to get cost-effective cutting-edge technologies to mitigate environmental issues and challenges. तो हम रिसर्च में क्या करते हैं? We find out different, we do innovations, we find out different ways to certain problems to solve it. तो रिसर्च में और या फिर पोस्ट डॉक वर्क में अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग इकोलॉजिकल मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उससे हम कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज निकाल रहे हैं जिससे हम एनवायरमेंटल इश्यूज को मिटिगेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है रिसर्च में इसका स्कोप. नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रीज. इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजीज and to mitigate the environmental degradation directly or indirectly caused by the industries. A large number of industries have been recruiting environmental engineers, scientists, and experts. So industries में, as we all know, कि
रेजिडुअल जो भी मैटर होगा दैट इज अ पोल्यूटेंट। जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वी आर समहाउ हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो अब इंडस्ट्रीज हायर करते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स होती हैं फॉर इंजीनियर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को या ऐसे वे या फिर ऐसे आइडियाज को इनोवेशंस निकालते हैं, आइडियाज देते हैं, या वो रिसर्च करके ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो भी वो इंडस्ट्री कर रही है, डायरेक्टली कर रही है, इनडायरेक्टली कर रही है, तो उसके लिए वो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाल सके। तो देयरफॉर दे हायर एनवायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। तो ये स्कोप है इंडस्ट्रीज में। And then it is ministries and agencies. So Ministry of Environment and various environmental agencies and conventions of national and international repute frequently create vacancies for environmental experts. तो मिनिस्ट्री में या फिर जो environmental agencies हैं, गवर्नमेंटल एजेंसीज या फिर कन्वेंशंस ऑफ नेशनल या कि नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसमें फ्रीक्वेंटली बहुत वैकेंसीज आती रहती है। तो दैट फील्ड आल्सो हैज अ स्कोप, also have a scope for the people from environmental studies. A few examples of such agencies are: first one is UNEP, United Nations Environment Program. The second one is IPCC. IPCC stands for Intergovernmental Panel on Climate Change. CITES stands for the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Or the second one is Ramsar Convention. The next is US EPA, that is United States Environmental Protection Agency, etc. तो ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस हैं और बहुत सारी लाइक हमारी इंडियन मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल में भी वैकेंसीज, मतलब हर जगह इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे एवरी कंट्री हैज अ मिनिस्ट्री जिसमें कि फॉर द कॉज ऑफ एनवायरनमेंट देयर आर सर्टेन वैकेंसीज, पीपल वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, दे हैव लॉज, एनवायरमेंटल लॉज एज वेल। तो हर जगह पे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, सो इट आल्सो हैज अ स्कोप देयर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Okay, so again it is non-governmental organizations and consultancies. NGOs, what we call as NGOs. So a large number of national and international NGOs and consultancies are working as an extended hand to conserve the environment and its various components. तो जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत सारे एनजीओज आजकल वर्क कर रहे हैं फॉर द कॉज ऑफ एनवायरमेंट, कंसल्टेंसीज वर्क कर रही हैं, तो they are all working to conserve the environment and its components. तो ये एक major scope है for the people from environmental studies. Most of the NGOs and consultancies are old and have an experienced workforce. Some of the examples are the Bombay Natural History Society, IUCN, Conservation International, Worldwide Fund for Nature, Wildlife Trust of India, Center for Environmental Education, Center for Science and Environment, CSE, Kalp Vriksh, Madras Crocodile Bank Trust, etc. So these are some NGOs that are working for the cause of that are working to conserve the environment. तो ये जो examples हैं, they have a very experienced workforce. they मतलब वो ऐसे individuals को hire करते हैं that are expert in this field. तो obviously NGOs में वो भी होता है, internships भी होती हैं, they prepare you, they introduce to a field like field problem. तुम on field work कर सकते हो in NGOs. Obviously you work everywhere. रिसर्च में भी हम ऑन फील्ड वर्क करते हैं, बट एनजीओज ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्क फॉर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. दे वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स. तो अ पर्सन that is an expert in this field that can apply for a job or that in NGOs and consultancies. So this also provides a scope. अगला है green journalism.
So let's first understand green journalism. What is green journalism? Green journalism is the term given when media raises environmental issues and practical solutions suggested by experts on the subject. तो ग्रीन जर्नलिज्म किसे बोलते हैं कि जब मीडिया एनवायरमेंटल इश्यूज पे स्पीक करती है या एनवायरमेंटल इश्यूज को रेज करती है ऑन मीडिया और इट कैन बी एनी मीडिया, सोशल मीडिया, एनीथिंग। तो जब मीडिया इस इशू को रेज करती है और उसके सॉल्यूशंस जो कि एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, दैट इज मतलब हम जब मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज ग्रीन जर्नलिज्म। एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस is indispensable for environmental conservation, and media is the strongest medium to propagate the awareness. First of all, awareness बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for conservation. अगर conservation करना है तो first step would be awareness. You have to make people aware. And media कोई भी हो सकती है, print media, electronic, social media. तो द मीडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टू प्रोपगेट अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करनी है या अवेयरनेस को प्रोपगेट करना है तो हमें मीडिया की जरूरत पड़ेगी। एंड ग्रीन जर्नलिज्म किसे बोलते हैं? जब मीडिया एनवायरमेंटल इश्यूज को रेज करती है, उसके सॉल्यूशंस को जो कि एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किए हैं उसको उसको शो करती है ऑन दैट प्लेटफॉर्म। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सोशल मीडिया और ऑन टेलीविजन। फाइन। The next is environmental legislation and green advocacy. For effective environmental conservation, it is indispensable to have stringent legislative provisions and effective implementation of the same. हमारे पास लीगल प्रोविजंस होने चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ग्रीन एडवोकेसी, जैसे हम ग्रीन जर्नलिज्म कर रहे थे वैसे ही ग्रीन एडवोकेसी है। वी शुड हैव लॉज फॉर वी हैव एनवायरमेंटल लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल। फाइन। तो इफेक्टिव कंजर्वेशन के लिए हमें इफेक्टिव प्रोविजंस चाहिए, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। तो लीगल एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज्ड इन environmental law may act significantly in environmental conservation. So the people that are expert in legal aspect of the environmental law, जिसने environmental law पढ़ा है, that those legal experts are significantly important for, or they play an important role in environmental conservation. क्योंकि law बनाने के लिए हमें subject की knowledge होनी चाहिए. So experts can only write down laws for environmental conservation. Though India has environmental law, but laws में भी amendments होते हैं, changes होते हैं. तो जिसने लॉ बना दिया है वो भी एक एक्सपर्ट ही रहा होगा जिसने उन लॉ को पेन डाउन करा है या लिखा है। तो किसी भी चीज के लिए लॉज बनाने हैं या लीगल प्रोविजंस बनाने हैं तो उसके लिए हमें उस सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें भी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। फाइन। तो ये हमारे ब्रॉड एरियाज थे जहाँ पे हमारा इस सब्जेक्ट का बहुत स्कोप है, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो in the last 5 decades, environmental studies or environmental science has emerged as an important multidisciplinary subject dealing with the aspects of issues and challenges in the environment. And it also suggests practical solutions to environmental problems. तो लास्ट 5 डेकेड से एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड दैट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो वो किस से डील कर रहा है? वेरियस इश्यूज से, जो कि एनवायरमेंट के वेरियस चैलेंजेस एंड इश्यूज, और साइड बाय साइड दे आल्सो प्रोवाइड सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। द सब्जेक्ट इज still evolving as environmental problems are also growing in intensity and magnitude at a fast pace. Very true कि सब्जेक्ट स्टिल इवॉल्व कर रहा है, लाइक वी आर स्टिल डूइंग न्यू इनोवेशन, वी आर फाइंडिंग न्यू वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं बोथ इन इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। तो बहुत फास्ट पेस से हमारे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं। तो every problem gives a new experience, every problem gives a new conclusion or a new knowledge to the expert as well. Experts भी सीख रहे होते हैं, they also get, क्योंकि हर situation अलग है, everything, किसी भी जगह का अगर हमें
सपोज किसी जगह पे हमें बायो रेमेडिएशन करनी है, तो उस जगह का सब कुछ अलग होगा, सॉइल पैटर्न, माइक्रोब्स, फ्लोरा, फौना, तो हर जगह अलग होगा. वी जस्ट हैव द बेसिक नॉलेज एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज एंड फाइंड आउट द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर इट. ठीक है. Okay. Anthropogenic activities have created the issues like pollution caused by conventional and emerging pollutants. जो कन्वेंशनल फ्यूल कह सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड से जो भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, growing global energy demands, utmost pressure on natural resources, etc. तो ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं, वो ये सब है. जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, पोल्यूटेंट्स मतलब पोल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी डिमांड्स इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबली, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन natural resources which are causing serious threats to life on the planet. Environmental studies have given tangible solutions to the environmental problems. Very true. कि environmental studies के से ही हमें मतलब उस subject को पढ़ के ही हम solutions निकाल पा रहे हैं for our environmental problems. Some of the prominent fields that the subject addresses may be summarized as, जो important fields हैं इस subject के, उसको हम summarize कर सकते हैं under these broad headings that are environmental education and ethics. Very important कि अगर हम किसी कॉज के लिए वर्क कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के लिए वर्क कर रहे हैं, वी शुड नेवर एवर फॉरगेट कि उसके एथिक्स क्या है. एथिक्स पता होंगे तभी आप सस्टेनेबली उसके लिए वर्क कर पाएंगे, तभी आप एक सस्टेनेबल सोल्यूशन उसको दे पाएंगे. ठीक है. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एथिक्स. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑडिट, renewable resources of energy, global warming, climate change, biodiversity conservation, pollution monitoring and mitigation, population and environment, waste management, etc. Hence, it is necessary to make the new generations aware of the basics and details of the subject. So, first of all, let's see कि broad जो subjects हैं या fields हैं वो क्या क्या हैं. कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एथिक्स जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, इकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज कि कहाँ अक्रॉस इंडिया कैसे कैसे स्प्रेड आउट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज द परसेंटेज, किस तरीके से उसे यूज करना चाहिए, बिकॉज वो रिन्यूएबल नहीं है. दैट ऑल कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो हमारे पास इनफाइनाइट सोर्स नहीं है उसका. तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है. एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑडिट, जो हमारे एनर्जी लाइक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम जो मेथड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर और दीज थर्मल पावर प्लांट्स, तो हमें बहुत सारे मेथड्स हैं. ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं. तो हमें ये समझना है कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या है. किसी भी एक मशीन, सिंपल मशीन की भी एक एफिशिएंसी होती है, तो हमें एनर्जी एफिशिएंसी को स्टडी करना है. एंड ऑडिट, ऑडिट मीन्स कि हम चेक करते हैं, रेगुलर चेक्स ऑन एनीथिंग. किसी प्रोजेक्ट का ऑडिट हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं हम दैट आर इम्पोर्टेंट. हर प्रोजेक्ट का एक अलग ऑडिट शीट होगा, लाइक कि क्या क्या उसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को स्टडी करना है. तो ऑडिट में हम यही स्टडी करते हैं कि वो प्रोजेक्ट या फिर वो इंस्टीट्यूट या फिर वो इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को किसी वे में हार्म तो नहीं कर रही है. हम उन सब पैरामीटर्स को, या फिर वो किसी एनवायरमेंट, नॉट ओनली एनवायरमेंट, पॉपुलेशन भी, आसपास की ह्यूमन पॉपुलेशन, आसपास की लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, सबको, उनमें से किसी को भी इफेक्ट कर रही है, तो वो इन ऑल एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रही है ना. तो हमें उस सबको कंसीडर करना होता है. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमें समझना होगा कि जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो, उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज इंड्यूस हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज इज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो उससे सॉरी, सो ग्लोबल वार्मिंग को समझना कि क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना. ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट एक इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट.
तो हमें उसकी नॉलेज होगी तभी हम क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स को समझ पाएंगे। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना सिंपल है। पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन, पोल्यूशन को मॉनिटर करना, जैसे कि हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो हमें एक वेरियस पैरामीटर्स देता है कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में CO2 है तो वो इतने इतने अमाउंट में होना चाहिए, इतना ppm किसी भी एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए हमारे एयर में या फिर वाटर में। तो हर चीज के पैरामीटर सेट है। तो पोल्यूशन को मॉनिटर करना और उसे मिटिगेट करना कि अगर सपोज हमें ऐसा लगता है कि इस चीज से पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा तो हमें उसके मिटिगेशन मेथड्स भी पता होने चाहिए, या फिर हम उसे फाइंड आउट कर सके, हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए। पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट सिंपल है कि ह्यूमन से और एनवायरनमेंट का जो वो है लाइक कॉमन स्फेयर है जहाँ वो इंटरैक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट की हमें नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे फील्ड्स और हैं बट ये एक ब्रॉड व्यू है कि इतने 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 फील्ड्स हैं जो कि हम एक क्लासिफाई कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं ब्रॉड हेड्स में। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू मेक द न्यूअर जनरेशंस अवेयर ऑफ द बेसिक्स एंड डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमारी नई जनरेशन को इस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। वी शुड मेक देम अवेयर एज वेल। ठीक है, दिस इज अबाउट द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। We will move to the next slide now. Okay, so this is what Gandhiji said in his times, that is long ago. So resource conservation advocated by Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी ने भी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कुछ कहा था, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन वॉज एन इशू दैट महात्मा गांधी थॉट डीपली अबाउट, लाइक उन्होंने भी उस टाइम में इस इशू के बारे में सोचा था। लेट मी चेंज द कलर 1 सेकेंड। He pioneered the idea that Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. This is a wise line अगर हम उसको समझे कि एनवायरमेंट या फिर हमारा अर्थ एक ह्यूमन के बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एनफ, इट कैन प्रोवाइड एनफ, और बट it cannot satisfy every man's greed. Greed is like लालच। अगर हमें we never stop, we are never satisfied। तो अगर हम अपनी कंफर्ट के लिए, अपना इजी लाइफस्टाइल के लिए हम अपने ग्रीड्स को इंक्रीज ही कर रहे हैं। आजकल हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को इंक्रीज करके वी आर मेकिंग आवर लाइफ इजी। तो हम अर्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो उस टाइम पे गांधी जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको इस लाइन का मतलब। At a time when few people understood how quickly the world's resources would be depleted, तो ये उन्होंने कब कहा था, जब बहुत कम लोगों को ये समझ आने लगा था कि वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। दैट वाज द टाइम जब हम ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का आइडिया बस एक बहुत छोटे लेवल पे था, बहुत कम लोगों को समझ आ रही थी वो चीज। तब गांधी जी ने ये बोला था। तो मोस्ट पीपल एट द टाइम बिलीव्ड दैट द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज वर इनफाइनाइट। बिफोर दैट सबको ये लगता था कि अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। वी विल go on consuming all this, or we will be getting it till the like our future generations will also get in the same amount, क्योंकि वो खत्म नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट है। But consequently this was a novel idea that called for radically different way of life। जब गांधी जी ने ये बोला, जब ये स्टेटमेंट दी उन्होंने, तब कि अर्थ कैन प्रोवाइड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, तो इसके बाद एक रैडिकल दिस आइडिया कॉल्ड फॉर अ रैडिकल वे ऑफ लाइफ। वो एक थॉट रैडिकली चेंज हो गया। रैडिकली मीन्स बहुत स्मॉल टाइम में उसने एक बहुत डिफरेंट व्यू दिया लोगों को कि सब खत्म हो जाएगा एक दिन। वी हैव टू पुट अ स्टॉप ऑन आवर ग्रीड। हमें सिर्फ जितना हमें चाहिए उतना यूज करना चाहिए। तो गांधी जी एडवोकेटेड फॉर द मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल।
as a way to preserve the planet's limited resources. तो गांधी जी ने ये बोला था कि हमें एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए जिसमें कि जितना हमें चाहिए, जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है, जितना हमें चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी आप यूज कर लो आपका ग्रीड खत्म नहीं होगी, बट जो बेसिक नीड है उसके लिए आपको जितना चाहिए, जितना वाटर, एयर इज ऑब्वियसली द बेसिक थिंग, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रूट्स, ट्री, फ्यूल वुड, जितना चाहिए अगर आप उतना यूज करोगे तो तभी हम प्लानेट के लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, द सेम स्टेटमेंट इज है रिटन है, ये महात्मा गांधी ने उस टाइम पे बोली थी, और एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था उन्होंने, बहुत दिस स्टेटमेंट इस ने मतलब इस स्टेटमेंट से ही लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई थी, जो उनको एक लगता था कि रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे, तो दे गॉट टू नो कि हाँ रिसोर्सेज खत्म होंगे एंड वी हैव टू कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स in environmentalism. Okay. In the Western world, the first ever concern about environmental degradation was raised after the publication of the book Silent Spring by Rachel Carson in 1962. तो रेचल कार्सन ने एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग 1962 में. This book raised the issue of excessive use of chemical fertilizers and pesticides in the US and its impact on different biotic and abiotic components of the environment. तो इस बुक फर्स्ट टाइम डीडीटी का भी इसी में इसी के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ था, डीडीटी के क्या इम्पैक्ट्स हैं वो इसी बुक के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट हुई थी. रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग में मेंशन किया था कि हम कितने फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट पे और उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों पे. तो यहाँ से आइडिया राइज हुआ था कि हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे एनवायरनमेंट को कैसे हार्म कर रहे हैं. तो ये पहला लैंडमार्क था. इन 1962 साइलेंट स्प्रिंग वाज रिटन बाय रेचल कार्सन, जिसमें कि फर्टिलाइजर्स का मेंशन करा था उन्होंने, हार्मफुल इफेक्ट्स. ओके, तो नेक्स्ट है 1970 द बुक लिमिट्स ऑफ ग्रोथ बाय क्लब ऑफ रोम अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन. तो 1970 में एक बुक लिखी गई थी क्लब ऑफ रोम, द बुक थी लिमिट्स टू ग्रोथ. इट वाज रिटन बाय द क्लब ऑफ रोम व्हिच अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन एज वेल. तो ये दो बुक्स थी जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में मेंशन किया गया था और उसने काफी अटेंशन गेन करी थी ग्लोबली एज वेल. नेक्स्ट था रामसर कन्वेंशन which came into existence on 2nd February 1971 with the aim to conserve wetlands. Hence, World Wetlands Day is observed every year on 2nd February. तो 2nd February को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं. तो हुआ ये था, क्यों करते हैं, क्योंकि 2nd February 1971 में हमने रामसर कन्वेंशन केम इनटू प्ले. और रामसर कन्वेंशन का सोल एम था कि हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना है. wetlands are very important for the very important sphere of environment. कि मतलब वहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, रिच फ्लोरा होता है, फौना होता है, मतलब तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एनवायरमेंट का वेटलैंड्स. तो उसकी इम्पोर्टेंट को समझना था. रामसर कन्वेंशन ने वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंट को समझा और एक कन्वेंशन फिर आया कि हमें उन्हें कंजर्व करना है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तब से ग्लोबली ये कन्वेंशन आया था, काफी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और हम 2nd February को इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस Conference on Human Environment was organized in Stockholm between 5th June to 16th June, where India also presented its view on environmental degradation. United Nations Conference हुई थी on Human Environment, Stockholm Conference जो हुई थी, it happened between 5th to 16th June, जहाँ पे कि इंडिया ने भी अपना व्यू प्रेजेंट किया था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे. इन रिमेम्बरेंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th June. तो इस कॉन्फ्रेंस से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन
के कॉज के लिए वेरियस कंट्रीज केम टुगेदर, तो इसलिए इस दिन को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिमेम्बर करते हैं, और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। यू हैव टू रिमेम्बर दीज डेज कि किस डे पे क्या होता है, कौन से ईयर में साइलेंट स्प्रिंग आया था, किसने साइलेंट स्प्रिंग लिखा था, लिमिट्स टू ग्रोथ किसने लिखी थी, 1970 में आई थी, तो ये सब आपको याद रखना है। रामसर कन्वेंशन किस लिए आया था, वेटलैंड्स के लिए आया था, 1971 में आया था 2 फरवरी को। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 टू सेव इट्स नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इन बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड विटनेस्ड वेरियस वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो आपको पता है होगी आई होप, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984। यू हैव टू रिमेम्बर द ईयर, 1984 में हुई थी। और नेक्स्ट एक जो मेजर ट्रेजेडी हुई थी वो था चर्नोबाइल नेचुरल डिजास्टर, जो कि 26 अप्रैल 1986 में हुई थी, विच टॉट मेनी लेसन्स टू द ग्लोब। कि ये जो दो वर्ल्ड वाइड, लाइक इंडिया ने और वर्ल्ड ने दो, लाइक इंडिया में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, और चर्नोबाइल डिजास्टर हुआ था 1986 में। तो ये दो डिजास्टर्स हुए थे जिससे कि ग्लोब में काफी अवेयरनेस क्रिएट हो गई थी रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट और क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो एक केमिकल डिजास्टर था। उसमें ये हुआ था कि एक कंपनी या फिर एक इंडस्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पेस्टिसाइड प्लांट था, वहां पे पेस्टिसाइड प्रोडक्शन होता था। भोपाल, आई होप यू यू ऑल नो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री थी, वहाँ उस डिजास्टर में क्या हुआ था कि एक टॉक्सिक गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिलीज होने की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन गॉट एक्सपोज टू इट। तो ये काफी बड़ा डिजास्टर था। लाइक यू शुड रिमेम्बर कि मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से डिजास्टर हुआ था, एंड यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंपनी एज वेल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ये यूक्रेन में हुआ था, और इसमें भी एक बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिलीज हो गए थे, जस्ट बिकॉज कि एक फॉल्टी डिजाइन था रिएक्टर में। वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू शुड रिमेम्बर द डेट एंड द ईयर ऑफ दीज डिजास्टर्स। चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर डिजास्टर था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वर रिलीज्ड, क्योंकि प्रोफेशनल्स बहुत ट्रेन नहीं थे, एंड जो उस रिएक्टर का लाइक जो रिएक्टर था वो फॉल्टी डिजाइन था उसका। तो ये रीजन रहा था उस डिजास्टर का। इट हैपेंड इन यूक्रेन। और एक और डिजास्टर हुआ था, सबको पता होगा, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर इन जापान। तो ये मेजर लैंडमार्क्स हैं, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको उन सबके बारे में होना चाहिए। तो नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 were signed to protect ozone layer from getting depleted by ozone depleting substances। तो ये दोनों जो कन्वेंशन आए थे या प्रोटोकॉल आया था, वो आया था ओजोन लेयर के लिए, कि जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। So these two came in to reduce or to eradicate or to remove those components from the environment, क्योंकि ये सब anthropogenic activities से ही हो रहा था। We humans were the sole contributor। तो हमें इन सबको कैसे एनवायरमेंट से या हमारे लाइफस्टाइल से कैसे रिमूव करना है, या कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सा एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये सब इन कन्वेंशंस के अंडर था कि हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। Wait a second. Next point is the concept of sustainable development was introduced to the world by Brundtland Commission report, जिसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर, और ये रिपोर्ट आई थी 1987 में। तो ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी जब हम एक
ये तब हुआ था जब हमें एक सस्टेनेबल व्यू चाहिए था, या एक सस्टेनेबल ऑप्शन चाहिए था जिससे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकें, कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों साथ में ग्रो करें, एनवायरनमेंट कंजर्व कर सके हम, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो कंट्री के, नेशन के, ऑल ओवर द ग्लोब। तो उसको हम एक सस्टेनेबल अप्रोच कहते हैं। तो उसके लिए वो आइडिया आया ही ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बाद था। उसका टाइटल रहा था आर कॉमन फ्यूचर। उस उस रिपोर्ट से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया, लाइक दैट केम इन फ्रॉम देयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, वो कंसेप्ट वहां से आया था। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। So IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, came into existence in 1989. तो उसका काम क्या था? To formulate the framework to combat global warming and climate change. तो IPCC का क्या एम था? टू फॉर्मुलेट फ्रेमवर्क टू कम्बैट, मतलब उन्हें ऐसे गाइडलाइंस और ऐसा फ्रेमवर्क बनाना था जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट कर सके। ठीक है, तो आईपीसीसी कब आया था? 1989 में, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है एजेंडा 21, दैट वाज अडॉप्टेड एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। एजेंडा 21 वाज फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और ये आया था जब अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में इन 1992। नेक्स्ट इज यूएन ट्रायो सिस्टर कन्वेंशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेम्बर दीज। एक 3 सिस्टर कन्वेंशंस आए थे, हम सिस्टर कन्वेंशंस बोलते हैं इन तीनों कन्वेंशंस को, जो कि 1992 में ही आए थे। तो वो कौन से 3 कन्वेंशंस थे? लेट्स फर्स्ट रीड दीज। यूएनएफसीसी, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। UNCCD, United Nations Conventions to combat desertification। तो ये 3 सिस्टर कन्वेंशन आए थे, पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि एनवायरमेंट के लिए थे, और 1992 में आए थे। ये सब एक 3 सिस्टर कन्वेंशन साथ में आए थे, और इनका सोल पर्पस था टू कंजर्व द एनवायरमेंट। यूएनएफसीसीसी में था कि हमें क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करना है, सीबीडी में था, सीबीडी था फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और सीसीडी था फॉर डिजर्टिफिकेशन या कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये 3 मेजर सिस्टर कन्वेंशन आए थे। आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ईयर याद होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए। और नाम से आप समझ पा रहे हो कि ये किस कॉज के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट है इन 1997 क्योटो प्रोटोकॉल was signed to curb the emission of greenhouse gases responsible for global warming। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। इट वाज मेजरली फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कि हमें उन्हें कैसे रिड्यूस करना है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज फॉर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यू शुड रिमेम्बर, जो हाईलाइट करा हुआ है दैट इज कि वो उसका कॉज है, और आपको ये सब चीजें याद रखनी है। क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, और किस लिए साइन किया गया था? टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, Rio+10 was conducted in 2002 in Johannesburg। तो 1992 के बाद वो 2002 में वर्ल्ड समिट हुई थी अगेन फॉर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वाज आफ्टर रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में जो हुई थी उसके आफ्टर, मतलब 10 साल बाद हमारा 2002 में जोहान्सबर्ग में हुई थी फिर से वर्ल्ड समिट। यू शुड रिमेम्बर कि लाइक ये कौन से ईयर में पहली समिट हुई, फिर कौन से ईयर में दूसरी समिट हुई, 10 ईयर्स के गैप पे दोबारा 2002 में हुई थी। ठीक है, दैट वाज द वर्ल्ड समिट। जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी दैट वाज अर्थ समिट, जहाँ पे हमें एजेंडा 21 मिला था। और जो 2002 में हुई है उसका था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये लैंडमार्क्स अच्छे से याद रखने हैं, किस जगह पे हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, क्या नाम था, कौन सा प्रोटोकॉल आया था, किस वजह से आया था। ठीक है, मतलब उसका क्या एम रहा था, कि जैसे कि क्योटो का ग्रीन हाउस गैसेस था, मॉन्ट्रियल का ओडीएस था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये सब। ठीक है, The government of India took the initiative to form the International Solar Alliance 30th November 2015 में, headquartered at Gurugram, India।
सो गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर। तो एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, ये एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म करेंगे। इट वाज ड्यूरिंग द फेमस पेरिस कन्वेंशन ऑफ यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट वाज ड्यूरिंग दिस, जब पेरिस में कन्वेंशन हुआ था। इन ऑर्डर, ये क्यों हुआ था? इन ऑर्डर टू motivate the tropical and subtropical countries to maximize the use of solar energy instead of conventional energy sources. तो जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, तो वो क्या, दे हैव अ रिच सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी अबंडेंस में आ रही है। तो सॉरी, तो इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे, जिसमें कि हम कंट्रीज को मोटिवेट करेंगे कि वो अपने सोलर एनर्जी के यूज को बढ़ाएं और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कम यूज करें, क्योंकि सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो इनफाइनाइट अमाउंट में हमारे पास है, तो हमें उसे ज्यादा यूज करना चाहिए रादर देन डिप्लीटिंग अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आई होप इतना आपको ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स याद हो गए होंगे। आपको क्या क्या याद करना है ये मैंने आपको बता दिया। यू शुड लर्न ऑल दिस, ठीक है। ये एक चार्ट है जिससे आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा, इसे ध्यान से समझना, और दिस विल हेल्प यू लर्न द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर, ठीक है। ये सब उसी की समरी है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It was a global perception that environmental conservation and economic development cannot be pursued together. ऐसा लगता था लोगों को कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना और इकोनॉमिकली ग्रो करना साथ साथ नहीं हो सकता है। बट विद द onset of the 1980s, the world started finding the middle path so that long-term economic development may be pursued without harming the environment. तो 1980s में एक मिड वे निकाला लोगों ने कि जिससे हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को हार्म भी ना करें, ऐसा हो सकता है। तो विद दिस एम, यूनाइटेड नेशंस established the World Commission on Environment and Development (WCD) under the chairmanship of Geo Harlem Brundtland, that who was a former prime minister of Norway. At that time he was the prime minister of Norway. तो under his chairmanship यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश किया था इन दिसंबर 1983। तो ये 1983 दिसंबर में फॉर्म हुआ था। किसने फॉर्म किया था? जियो हार्लेम ब्रटलैंड ने। तो इस कमीशन से हमें एक रिपोर्ट मिली थी। दिस कमीशन इज द कॉमनली नोन एज ब्रटलैंड कमीशन। पहली बात तो यही ब्रटलैंड कमीशन है, ठीक है। और जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर, तो वो इसी कमीशन की पहली रिपोर्ट आई थी और उसी रिपोर्ट में हमें सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट पता लगा था, और यही वो मिडल पाथ था जो लोगों को समझ आने लगा था 80s में, ठीक है। द टास्क ऑफ द कमीशन वॉज टू फॉर्मुलेट अ ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज। Brundtland Commission submitted its report entitled Our Common Future in 1987. 83 में ये कमीशन फॉर्म हुआ था और 1987 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी, उसका नाम था Our Common Future, तो which gave the concept of sustainable development to the world. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पहली बार वहां से अराइज हुआ था। The report defines sustainable development as the development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Sustainability का मतलब यही होता है कि फ्यूचर जो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो अपनी नीड्स को मीट कर सके और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इतना बचा के रख सके कि वो उन्हें अपनी नीड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मतलब खुद भी अच्छे से यूज करना है और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसको सस्टेन करना है या फिर एनफ अमाउंट में प्रिजर्व करके रखना है। सो द सस्टेनेबिलिटी, लैटिन वर्ड से आए ये वर्ड सस्टेनेर, which means to hold up. So sustainability is a long-term idea that means making the entire world sustainable. However, sustainable development refers to pathways by which the goal of sustainability and sustainable world can be achieved.
तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें इंटायर वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल क्या था कि अभी के प्रेजेंट नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें वो पाथवेज बताता है या हमें वो पाथ शो करता है जिससे कि हम सस्टेनेबिलिटी के गोल को भी अचीव कर सके और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड को बना सके या वर्ल्ड को सस्टेनेबल बना सके। ठीक है, दैट ये इस लाइन में कुछ नहीं था, बस सस्टेनेबिलिटी का मतलब बताया गया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबिलिटी बस एक आइडिया है जिससे हम वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो पाथवेज देता है जिससे हम वर्ल्ड को सस्टेनेबल बना सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी का गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। आई होप ये बहुत क्लियर हो चुका होगा अभी तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यू शुड, आई थिंक यू ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस। इसके 3 स्फेयर्स भी हम आगे पढ़ेंगे बट ये सब बहुत अच्छे से समझना हो। Sustainable Development Goals, SDGs. These are the 17 goals set as the 2030 Agenda for Sustainable Development. हमने कुछ 17 goals set करे हैं जिन्हें हम SDGs बोलते हैं, Sustainable Development Goals. उनको 2030 Agenda for Sustainable Development के टाइटल से जानते हैं हम. It was adopted by the United Nations state members in 2015 as a blueprint for peace and prosperity of people and the planet. ये एक ब्लूप्रिंट था फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी. All the developed and developing countries have been called to achieve the goal by the global partnership. तो बहुत सारी कंट्रीज जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज थी, दे केम टुगेदर टू अचीव दिस गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो उसके अंदर हमने 17 गोल्स को पेन डाउन किया था जो कि यूनाइटेड नेशंस के स्टेट मेंबर्स ने लिखा था और उन्हें अडॉप्ट किया था. जो कंट्रीज थी उन सब ने उन्हें अडॉप्ट किया था. हम पढ़ेंगे कि 17 जो गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं. पहले हम ये समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी है क्या, कौन से 3 स्फेयर्स हैं. ठीक है, वेट, ओके. So society, environment, and economy are collectively considered the 3 pillars of sustainable development. Very important. Society, environment, and economy. ये 3 pillars हैं sustainable development के. When the 3 pillars harmonically interact with each other, sustainability and sustainable development achieved. These 3 pillars harmonically interact with each other, sustainability and sustainable development is achieved. Clear? A brief description of these pillars is given below. पहला है environmental sustainability. It means that we should consume environmental goods and services in a sustainable manner. ठीक है, महात्मा गांधी once rightly said, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. जो भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था. तो environmental sustainability sorry में क्या कंसेप्ट है कि हमें एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज को एक सस्टेनेबल मैनर में यूज करना है. सस्टेनेबल मैनर क्या है कि प्रेजेंट में भी हमें अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और फ्यूचर जनरेशंस की नीड को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. The present rate of over-exploitation of natural resources exceeds manifolds the rate of replenishment of the same, which is causing environmental degradation in exponential rate. तो लाइक डिग्रेडेशन किसे बोल रहे हैं हम लोग कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम उसे इतने फास्ट पेस से यूज अप कर रहे हैं, इतना या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हम उसे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि उसका जो रिप्लेनिशमेंट है, ऑब्वियसली नेचर में सब कुछ साइक्लिक होता है कि बन रहा है, सॉइल भी हमेशा बन रही होती है, वाटर इज ऑल्सो साइक्लिक. तो हम उसको रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं दे रहे, हम उसे इतने पेस से यूज कर रहे हैं कि वो रिप्लेनिश हो ही नहीं पाएगा. लाइक वो इट विल मूव टूवर्ड्स डिप्लीशन, वो खत्म हो जाएगा बट वो रिप्लेनिश होने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा पेस से तो हम उसे यूज अप कर रहे हैं. तो उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है. देयरफॉर नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज सस्टेनेबली. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6. गोल 6 में क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. गोल 7 में है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी.
Goal 13 mentions climate action. 14 is life below water. And 15 is for life on land. These all indicate environmental sustainability. 17 goals में से जो ये 5 goals हैं, these are for environmental sustainability. I hope it is clear. The next is social sustainability. Defines a society It defines a society as having fair and equal opportunities for its population with gender equality and good health and education facilities and people's participation in nation building. सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हो, पीपल शुड हैव गुड हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज हो, इट शुड बी लाइक फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन की भी फॉर ऑल द पीपल, and people's participation in nation building में people should participate. तो कौन से goals थे जो social sustainability को indicate कर रहे थे? Goal 3 that is good health and well-being. Goal 4 is quality education. Goal 5 is gender equality. Goal 7 affordable and clean energy. Goal 16 peace, justice and strong institutions. Goal 17, that is partnership for the goals, indicate social sustainability. Fine. You have to learn the 17 goals. और कौन सा goal किस 3 pillars के अंडर आते हैं, like environment के अंडर कौन से goals है, social के अंडर और economic के अंडर. You should know all these. Okay. Next is economic sustainability. Economic sustainability means the equitable distribution of resources. No one should be deprived of the basic needs to sustain a healthy life. Benefits should be earned from resources, but not at the cost of irreversible loss to the environment. कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से बेनिफिट लेना है, बट हमें उसे इतना डिप्लीट नहीं कर देना है कि वो एक इरिवर्सिबल लॉस में कन्वर्ट हो जाए, कि वो हमें दोबारा मिल ही ना पाए रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी में हम ये करते हैं कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए. नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नीड्स, सबकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए. और हमें रिसोर्सेज को भी ऐसे डिप्लीट नहीं करना है कि दे विल नॉट रिप्लेनिश अगेन, कि वो एक इरिवर्सिबल लॉस हो जाए. तो इसके अंदर गोल्स आते हैं. गोल 1 दैट इज नो पॉवर्टी. गोल 2 जीरो हंगर. गोल 7 दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. सो यू विल सी कि गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है वो तीनों स्फेयर्स में आ रहा है, एनवायरमेंट में भी, सोशल में भी और इकोनॉमिक में भी. Goal 8 that is decent work and economic growth. Goal 9 that is industry, innovation and infrastructure. 10 reduced inequalities. 11 sustainable cities and communities. And goal 12 responsible consumption and production. All these indicate economic sustainability. These 3 pillars you should understand very well. उनके अंदर कौन से goals आते हैं, किस पिलर में हमारा क्या एम होता है, कि इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, दीज 3 कंबाइन टू गिव द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इतना क्लियर होना चाहिए. ये जो स्लाइड है, दिस गिव्स यू द say 17 goals which are sustainable development goals. You should learn these number wise कि goal 1 no poverty है, इसी number में याद करना है, first, second, third, 4, 5, 6 और what it stands for. जैसे goal 1 is for no poverty, second is zero hunger, third is good health and well-being, fourth is quality education, fifth is gender equality, sixth is clean water and sanitation, seventh is affordable and clean energy, 8th, decent work and economic growth. 9th, industry, innovation and infrastructure. 10th, reduced inequalities. 11th, sustainable cities and communities. 12th, responsible consumption and production. 13, climate change. 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice and strong institutions. 17 is participation for the goals. ये 17 SDGs आपको याद करने हैं. Okay. Now comes the 3 pillars और उनके overlapping areas. The 3 pillars intersect each other, giving the concept of bearable, equitable and viable globe, which collectively form sustainable world. तो ये जो 3 pillars हैं, उनके ये जो overlapping areas हैं, ये I hope आप समझ पा रहे हो कौन से.
ये जो डबल शेडेड रीजन्स है, इक्विटेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेयरेबल, सॉरी वायबल, वायबल, इक्विटेबल एंड बेयरेबल। तो ये तीन इंटरसेक्शंस को हमें स्टडी करना है कि किस किस इंटरसेक्शन से हमें कौन सा एरिया मिलता है। सोशल और इकोनॉमिक से हमें इक्विटेबल ग्लोब मिलता है। सोशल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ओवरलैपिंग एरिया इज बेयरेबल ग्लोब। Economical sustainability and environmental sustainability gives viable globe, and all these three areas combine to give the concept of sustainable development. Social और economic जब combine होता है तो उसे हम equitable बोलते हैं। Social और environment के overlapping area को हम bearable बोलते हैं। Economic और environmental के area को हम viable बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो गिवन है, और वो लाइक दे स्टैंड फॉर समथिंग कि सोशल और एनवायरनमेंट, जब सोशल एस्पेक्ट और एनवायरनमेंट इक्वली ग्रो कर रहा होगा तो वो एक बेयरेबल ग्रोथ देगा। ठीक है, कि हम उसे जस्ट बेयर कर सकते हैं बिकॉज उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, फाइन। और सोशल और इकोनॉमिक में इक्विटेबल होगा कि सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट वो एनवायरमेंटली साउंड नहीं होगा। और इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल में वायबल होगा, लाइक वो सस्टेन कर रहा होगा, बट वो सोशली अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों स्फेयर्स का हमें ये समझना है, और जो जहाँ पे तीनों ओवरलैप करते हैं उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द summary to this unit, which we have studied in these 3 lectures. Wait. Nature supports life. Man must realize the value of the environment and help to maintain it healthy and productive. जो नेचर है वो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, एंड वी मस्ट रियलाइज द वैल्यू, एनवायरमेंट की क्या वैल्यू है, एंड वी शुड हेल्प टू मेंटेन इट हेल्दी एंड प्रोडक्टिव। द एनवायरमेंट गेव हिम दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। हमें, दैट इज, मैन गॉट दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड फ्रॉम एनवायरमेंट। Before industrialization, urbanization, and population increase, mankind's natural environment was healthy and robust. ये जो 3 reasons हैं, जो causes हैं, industrialization, urbanization, and population increase, इससे पहले environment बहुत healthy था. It was healthy and robust. But nature nature used to refill its scarce supplies. मतलब तब तक क्या होता था, नेचर अपने आप को रिप्लेनिश करता रहता था, बिकॉज हमारा कंजम्पशन रेट बहुत कम था, लाइक वी वर जस्ट satisfying our needs. After modern civilization began, the healthy and efficiency of the natural environment began to deteriorate. मॉडर्न सिविलाइजेशन से एनवायरनमेंट की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, टू द पॉइंट दैट नेचर हैज लॉस्ट इट्स पोटेंशियल टू रिस्टोर मैन मेड रिसोर्सेज। सो नेचर इतना इस लेवल तक डिग्रेड हो चुका है कि वो अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर सकता है। तो एनवायरमेंटलिस्ट, जियोग्राफर्स एंड बायोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड वर्क टू रिस्टोर अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। Environmental management, pollution regulations, cycling of non-biodegradable material, etc. require more attention. These areas require more attention. Present day sustainability in nature requires careful utilization of natural resources. जो हमें एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, और नाउ प्रेजेंट डे सस्टेनेबिलिटी इन नेचर रिक्वायर केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक लेवल तक डिप्लीट कर दिया है कि दे आर नॉट एबल टू रिप्लेनिश देमसेल्व्स। तो हमें एक केयरफुल यूटिलाइजेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का। वी हैव टू गिव देम टाइम टू रिप्लेनिश। Modern environmental concepts like biodiversity conservation and ecological balance require more discussion. Environmental studies educate us to utilize natural resources more effectively and live sustainability. Environmental studies हमें समझाता है, हमें educate करता है कि हमें natural resources को utilize करना है effectively और sustainably. It reveals the natural behavior of organisms and their population and community interactions.
एनवायरमेंटल स्टडीज से ही हमें ऑर्गेनिजम्स का या पॉपुलेशन का एक नेचुरल बिहेवियर समझ आता है, एंड कम्युनिटी में क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं वो भी हम एनवायरमेंटल स्टडीज में ही पढ़ते हैं. तो दिस इज all about the first unit, that is introduction to environmental studies. Every concept is very important. It is the basis, it is the basic as well. इससे ही आपको आगे के सब कुछ समझ आएगा. तो you should learn it very well, you should understand everything very well, very well. We will end this lecture here, and this is where your unit 1 is completed. We will now continue in the next lecture with unit 2. Thank you.